कि वो पैदा होते हुए नहीं थे, बाद में हुए। इंटरनली उनको कोई डिफेक्ट नहीं था, या कोई डेफिशिएंसी नहीं थी, या कोई जीन्स एबनॉर्मल नहीं थे, मगर आपने उनको मोबाइल और टीवी और स्क्रीन के सामने इतना बिठा दिया कि चूंकि वो मोबाइल देख रहे थे, उन्होंने मम्मी डैडी को देखा ही नहीं। इनेटली इंटरनली उनको मम्मी की तरफ देखना, डैडी की तरफ देखने में कोई कमी नहीं थी, मगर आपने उनको सामने स्क्रीन के ही बिठा दिया और दिन भर वो स्क्रीन देख रहे हैं। अब वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बन रहे हैं, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो पैदा नॉर्मल हुए थे, नाउ वो ऑटिस्टिक सिम्टम दिखा रहे हैं। मगर उसको जानने का फ़र्क यही है कि आप बस ये स्क्रीन टाइम और ये ऑब्जेक्ट इन्वॉल्वमेंट कट कर दीजिए, एंड द किड कैन बी ब्रॉट बैक फार मोर इजीली, बिकॉज अंदर इंटरनली जेनेटिकली ही डिडंट हैव अ प्रॉब्लम। बट आई टेल यू टुडे, one of the most difficult things to do in the house or in today is to get the child to stop being addicted. There are parents I've seen that when we do their tests, they don't show autism. Their genetics tests are normal. All their evaluations are normal. But the child is just... So there was a friend of mine who had recommended a journalist. Mother was working somewhere. Father was a journalist. Dadi thi, she had passed away 2-3 years back. So this child is now 12 years old. When he's around 14 years old now. So during COVID time, this happened to many children. The human engagement got cut off. A normal child, he doesn't, neurotypical child, he didn't have any problems, but social interaction got cut off. And then at home, you are watching OTT or screen all the time. Worst, even academics and the school came online. तो वो आपको 6-6 घंटे वो भी देखना था. There was nothing else to do. So free time में also you are online. Yeah. Parents were working on home, you also saw them online. अब वो दादी थी, अब ये होते होते कोविड में अनफॉर्चुनेटली शी ऑल्सो पास्ड अवे. अब कोई है ही नहीं जो बच्चे के साथ इंटरेक्ट करे. अब बच्चे के साथ जब कोई इंटरेक्ट करने के लिए नहीं है, तो बच्चे के पास और कुछ है ही नहीं चारा, वो टीवी देखने लग गया. अब मोबाइल और स्क्रीन जो है वो इतना पावरफुल मीडियम है that it can hook you completely, because it triggers your dopamine. Games hai, you can do gaming, it get triggered into that dopamine, instant gratification, bunch of things together. So now once the child gets hooked onto it, so this parent was referred to me. He was a few minutes away from my Dadar clinic. He had stopped going to school. Why? क्योंकि स्कूल में ही नहीं है. अब उसको मेरे क्लिनिक में 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे लाना भी नागवार था. पेरेंट्स कुड नॉट गेट हिम आउट ऑफ हिज हाउस टू कम देयर. couldn't do anything. And he would threaten to jump off the balcony. कि फोर्स करोगे तो अब पेरेंट्स ये भी पढ़ लेते कि फादर ने ना बोल दिया मोबाइल के लिए तो बच्चे ने कुछ अपने आप का हार्म कर लिया. तो ये सिचुएशन है. क्या ये कोई बीमारी है जो अंदरूनी थी? नहीं. Was it genetic? Was it autism? No. But today, the danger of screen time has become so bad that we need to declare it as a national emergency. It's just like all the other addictions. But I'll tell you, it's worse than narcotics. Why would you say it's like narcotics? It's worse than narcotics. Why? क्यों? कोई भी पिताजी अपने बच्चे के लिए नार्कोटिक्स खरीद के नहीं लाएगा ना यार. And what I'm worried about, Raj, really is worst is to come. So the last few years, because of replacements of this pados, the neighborhood, lack of social engagement, increasing social isolation, no opportunity to learn behavioral issues, behavioral cognition. Children were directly into schools. You were in that binary pattern, and we started getting so many hyperactive children, anxious children, behavioral. Now with the advent of AI, आप मुझे बताओ क्या होने वाला है. आप और मैं भी नहीं तय कर सकते ये वीडियो फेक है या रियल है. आप और मैं भी तय नहीं कर सकते. 4 महीने का 5 महीने के बच्चे को आप एआई दिखाओ तो कैसे तय करेगा. दूसरी बात, अब ये एड्स आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे. एक बच्चा है, बेबी है, बेटी, अब लड़की 3 साल की, वो शेर की सवारी कर रही है. देखा आपने? ऐड आता है, वो ऐड आ रहा है और बता रहे कि आप 150 रुपये या 200 रुपये में वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए और आपके बच्चे का पिक्चर बुक बनाइए कि वो शेर की सवारी कर रही है, हाथी की सवारी कर रही है, घोड़े की कर रही है, गधे की कर रही है, राक्षस की कर रही है, और फिर उसको डाउनलोड करिए 150 रुपये में और बच्चे का पिक्चर बुक बना के अब उसको पिक्चर बुक दिखाइए. यार एक तो दुनिया मत दिखाइए. मासी चाची के यहाँ जाने के लिए फुर्सत न आपको है ना आपके बच्चे को जाना है. आप घर में बिठाइए और उसको पिक्चर दिखाइए कि मैं शेर पे बैठी थी, मैं गधे पे बैठी थी. अगले बार फ़र्ज़ करो कभी रियल शेर आ गया हो तो बच्ची जाके बैठ जाएगी उसके ऊपर, तो गधा आएगा तो गधे के साथ चली जाएगी
किसके साथ क्या करना, यानी अगर रियलिटी परसेप्शन, आई एम कमिंग टू द सीरियस पार्ट, अगर आप रियलिटी परसेप्शन ही बच्चे का डेवलप होने नहीं दे रहे हो, जैसा मैंने कहा ये सब चीज़ें डेवलप करनी पड़ती है, रैशनल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, दे आर नॉट इनबॉर्न, ट्रूली यू नीड टू डेवलप देम, यू हैव द जीन्स बट दे नीड टू बी किंडल्ड। अगर आप एआई में ये सब कर रहे हो तो मुझे डर ये है कि बच्चों का जो एक्चुअल रियलिटी वर्सेस इमेजिनेशन जो वो ही नहीं होगा। आपको एक मैं बात बताता हूँ, व्हाट वाज द वर्स्ट पनिशमेंट किसी क्रिमिनल को देते थे? सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। वो काला पानी सुनते आप? तो वर्स्ट क्रिमिनल, तो जब हमारे फ्रीडम फाइटर्स को ब्रिटिश वर्स्ट समझते थे, उनको वर्स्ट पनिशमेंट देने के लिए काला पानी भेजते थे। आज 2 लाख रुपए में आपको एक डिवाइस मिलती है। क्यों हंस रहे हो तुम? क्यों हंस रहे हो आप? I get it. वो 2 लाख में वो वी कुछ कहते हैं उसको, VI या VR वर्चुअल रियलिटी, तो आप वो पहनो और आप एक बिल्कुल अंधेरे चमकती तारों की दुनिया में, जहाँ पे गॉबलिन्स, एल्व्स, अलग अलग अजीब तरीके के मॉन्स्टर्स घूम रहे, और बच्चा बैठ के वो उसमें घुमा हुआ है, और आप 2 लाख रुपए में खरीद के बच्चे को दे रहे हो। तो पहले सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ये पनिशमेंट थी, अब आप घर में दे रहे हो। अब हम एक बड़ा सबसे बड़ी समस्या सरकार के सामने अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ ह्यूमन एम्प्लॉयमेंट। उससे बड़ी समस्या है लैक ऑफ ह्यूमन एंगेजमेंट। अगर इंसान को इंसान के साथ एंगेज कैसे होना है, इंटरेक्ट कैसे होना है, अगर यही नहीं आएगा तो एम्प्लॉयमेंट दे के भी क्या कर लोगे? और अगर बच्चों को 4-5 महीने से अगर हम ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये VR वर्ल्ड और ये सब चीज़ें खरीद के ला रहे हैं, और ये दे रहे, गवर्नमेंट तो कोई फ्री तो नहीं दे रही, हम पैसा दे के ला रहे हैं, ये सोच के कि हम बच्चों के भवितव्य को इम्प्रूव कर रहे हैं, आप आपके बच्चे के भवितव्य वर्स्ट चीज़ कर रहे हो। और इसलिए मेरी एक डिमांड है, हम इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स में हम लोग सब मेंबर्स हैं, तो जो पीडियाट्रिक एसोसिएशन से हम एक डिमांड कर रहे हैं कि एजुकेशन में AI और टेक्नोलॉजी के रोल पे फिर से विचार करने की ज़रूरत है, बहुत सीरियसली विचार करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जो मैंने कहा एक नर्चरिंग केयर है, वो मासी चाची वाला, वो तो आइडियल वर्ल्ड है, लेकिन बम्बई में या दिल्ली में या जो बड़े शहर है जहाँ पे बोथ पीपल हैव टू वर्क और फैमिली है नहीं, या कोई सिंगल मदर हो, उसको तो काम जाना ही है, तो शी हैज़ नो अल्टरनेटिव कि मैं रिलेटिव्स के यहाँ छोड़ूँ या कुछ, उसको तो एक ही अल्टरनेटिव है कि मैं स्कूल में एडमिशन लेके डालूँ। इसलिए ऑन योर शो आई वॉन्ट टू मेक अ डिमांड that all of us must rise up and form an organization and get together to demand that schools don't need to start with reading and writing and academics or Newton's first law or Shakespeare. Schools have to become the new पड़ोस। अब पड़ोस तो रहा ही नहीं, रिश्तेदारी रही नहीं। प्री प्राइमरी में जो बच्चे जा रहे हैं वहाँ पे उनको किताबें मत सिखाइए, कम्युनिटी, उनको कम्युनिटी दे दीजिए। कोई टीचर मासी बने, चाची बने, बुआ बने, कोई अंकल बने, कोई मामा बने, उनको सिर्फ ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो है, फिर भी आर्टिफिशियल होगा, मगर आपके पास चॉइस नहीं है कुछ। सोशल लिविंग, वर्किंग टुगेदर एज अ ग्रुप, लर्निंग टू वर्क टुगेदर, जो मैंने 4 चीज़ें बताई, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, रैशनल थिंकिंग, कम्युनिकेशन और वर्किंग एंड थिंकिंग एज अ ग्रुप, ये हमारा सिलेबस होना चाहिए। और हम क्या कर रहे हैं, प्राइमरी में भी कंप्यूटर्स है, अब प्री प्राइमरी में है। जब मम्मी बच्चे के साथ या पेरेंट्स एडमिशन लेने जाते हैं, उनको डर ये है कि अगर कंप्यूटर से जुड़ा हुआ सवाल कुछ पूछा और मेरे बच्चे ने नहीं बताया तो मेरे बच्चे को एडमिशन नहीं मिलेगी। इसलिए स्कूल के एडमिशन के पहले से ये घर में सिखाने की ज़रूरत पड़ती है। आप समझ रहे हैं? आई हैव अ फ्रेंड इन फिनलैंड एंड रिसेंटली शी टोल्ड मी अबाउट दिस कि उन मतलब हर किड्स लाइक इन हर किड्स इन हर फैमिली are going to a school which I was fascinated by कि वहाँ पे कोई specific school, I don't know which city, what school, या हर स्कूल ऐसा हर स्कूल में फिनलैंड में, राइट, वो स्कूल में तो up till a certain age, I think 7 years तक उन बच्चों का जो स्केड्यूल होता है वो बुक्स का स्केड्यूल, बिल्कुल सही, वो स्केड्यूल होता है कि आज एक ओल्ड एज होम में जाके सर्व करेंगे, आज एक ऑर्फनेज में जाके ये करेंगे, आज हम लोग सिर्फ स्पोर्ट्स में जाके ये करेंगे, आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ जिमनास्ट वाले जो लोग हैं उनको जाके हेल्प करेंगे। लाइक जस्ट 6 days, 5 days is different ways where they are serving and they're only learning कि रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, वैल्यू सिस्टम कैसे बनाते हैं, लोगों को सर्व कैसे करते हैं और काम कैसे करते हैं, बाकी उनको कुछ पढ़ाया नहीं जाता। एंड आई वाज
questioning and today ये सब सेंस कर रहा है जो आप बोल रहे हो, Absolutely. because maybe that's the reason that they are doing it. They might be वो the वैल्यू पे बहुत ज़्यादा फोकस करते than anything else. absolutely they might be the nation which will 10-20 years later will be the top nation of the world just because of this. और And हमारे even यहाँ today they are the happiest nation in the world. even earlier, maybe 10 years back, there was a study done, even academically, at the age of 16, जो हम 10th कहते हैं जो भी है, which was the country which had the best results at class 10th. I'm talking about 10 years earlier, जब ये स्क्रीन टाइम का इतना प्रॉब्लम नहीं था. तभी भी ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं उनके बच्चे डिड बेस्ट एट मैथ साइंस